So in last lecture, we have discussed about minimization of automata, and we have started a new chapter, that is chapter number 3, in which we have discussed the definition of grammar, and we have started Chomsky classification of languages, right? So in that we have covered 4 categories of languages: type 0, type 1, type 2 and type 3, right? And we have also listed how languages and automata are different. So in today's lecture, the name of the topic is derivation and language generated by grammar. Derivation and languages, derivation and languages generated by a grammar. Derivation and languages generated by a grammar, right? तो इसके अंदर मैं आपको 2 चीजें करवाऊंगा. The first thing is, first of all, a grammar will be given to you. A grammar is given and you will have to construct or find out a language. Okay, so this one is the first thing. Second thing is reverse. A language is given to you, language is given, but you will have to construct a grammar from a particular language. Am I clear? Okay. So derivation and languages generated by a grammar. In this category, we will be covering 2 topics. In first topic, a grammar is given to you and you will have to generate a language. And in second topic, a language is given and you will have to construct a grammar from it. Am I clear? Yes, sir. Can I Yes, start? sir. So your first example is, if G is equals to, so a grammar is given in this particular case. If G is equals to, first tuple is S, that is a tuple of variables. Second tuple is a tuple of terminals. Then P, third tuple in case of grammar, P. So P is a productions, and the last tuple is starting symbol, that is S, where S is variable, comma 0 and 1 are terminals. So the question is, find out the language generated by following grammar. Following grammar. This one is the question, and you will have to find out L of G. What does this means? L of G. It means language generated by grammar. You will have to find out the language. So how you are how you can generate this language? First of all, you will start with the initial production. So in this case, we are having 2 productions. The first production is S goes to 0 S1, and the second production is S goes to null. So you will always start with S goes to 0 S1, right? So keep this point in your mind. Your final answer
your final answer will consist, so all the terminals, there will be no variable is there, and terminals are in the power of something. So this is your answer. It will be N, M, P or Q. Anything can be there. Okay. So your final solution will be only terminals are there. There will be no variable, and terminals should be in the power of something. Power of N or power of M. Anything can be there, right? So let's get started. So first of all, we'll start with initial production, starting production, which says that S goes to 0, S1. So if I replace this S with the same production one time more, you will get 0, 0, S1, 1. Because S goes to 0, S1. I simply put the value of S over here, right? So variables will be repeating, but your terminals will be repeating, but your variable will not repeat at all. Keep this point in your mind, right? So if I put it once again 0, 0, 0, 1, 1, 1, because S goes to 0, S1. So if I keep on this, if I repeat this process, entire process, you will get, मैं statement रब कर रहा हूं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, s goes to 0 की पावर n, s 1 की पावर n, because of s goes to 0, s1 by n times. ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को आंसर के अंदर क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए, और 0 और 1 मेरे पास टर्मिनल आ चुके हैं, प्लस आई ऑल्सो रिक्वायर टर्मिनल्स इन द पावर ऑफ समथिंग. तो ये मैंने पावर भी जनरेट कर ली है एक प्रोडक्शन को बार बार यूज करके. नाउ व्हाट इज लिव, your this as a additional, because we don't want any variable in case of our answer. So look at your original grammar, you will be given with, because s goes to null, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s goes to 0 की पावर n, 1 की पावर n, तो s क्या हो गया आपका, null हो गया. So this is your answer. So L of G is equals to 0 की पावर n, 1 की पावर n. Am I clear about this question? Hello. Any doubt to any student? Hello. Ask me. लास्ट वाला एक बार और रिपीट. मैं स्टार्टिंग से दोबारा बेटा आपको समझा रहा हूं. सबसे पहले अपना क्वेश्चन ध्यान से देखिए. What is given to you? So you are given with a grammar in which all the tuples are defined. In grammar we have 4 tuples, v n variables, v t or sigma terminals, p productions, s starting variables. Now in question you will be given with find out the language generated by grammar. It means you will have to construct L of G. What does this mean? Language generated by grammar, right? So always start with the first production which is given to you. So the first production is s goes to 0, s1, right? If I repeat this production one more time, you will get 00, s11. If I repeat this production one more time, you will get 000, s111. And if you will repeat this production n number of times, you will get 0 की पावर n, s 1 की पावर n. मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात अपने ध्यान में रखनी है, हमेशा टर्मिनल ही रिपीट होगा, वेरिएबल कभी भी रिपीट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना, राइट? So that is why I am not putting any power to this s, rather I am putting powers to 0 or 1. So you will have one more production in the question, that is s goes to null. So s goes to null
by putting this production in your final step, you will get 0 की power n, 1 की power n. So which is your required answer? So your required answer says that you will have only terminals, and those terminals are in the power of something, and there is no variable, there is no capital letter in the final answer. Clear है बेटा? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो. सर शुरू से बता रहा हूँ, एक बार समझ नहीं आया. सबको क्लियर है? वो सर आगे चलें? नो सर. नो? सर एक बार समझा रहा हूँ, समझ नहीं आया. अनमोल क्या बोल रहे हो, दोबारा से समझना है? हाँ जी सर. अच्छा, क्या वो समझ नहीं लगी पहले? नो सर. चलो मैं दोबारा समझाता हूँ. सो ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? डेरिवेशन एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर. इसके अंदर आप लोगों ने दो चीजें करनी है. एक है, फर्स्ट चीज क्या है, अ ग्रामर इज गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लैंग्वेज, राइट? एंड इन सेकंड केस a grammar is given to you and you will have to construct a language, first case, and in second case that is reverse. ठीक है? A language is given to you and you will have to construct the grammar. So I am starting with the first method. In this method you will be asked to find out the language generated by a grammar. That is, you will have to find out the language. So first of all you will be starting with the starting production, that is s goes to 0 s1. तो ये आपके पास पहली प्रोडक्शन थी. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को यूज करके उसकी जगह पे एक दफा और मैंने s की वैल्यू रिप्लेस कर दी. तो जब मैं s की वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो मेरे जो साइड्स के ऊपर टर्मिनल्स हैं वो रिपीट होंगे, लेकिन वेरिएबल रिपीट नहीं होगा, राइट? सो आफ्टर दैट व्हेन आई पुट this production second time, you will get 0 0 s11. And if in case you will replace this production one more time, you will get 000 s111, right? Because reason आपको देना है कि क्यों आपने ये चीज करी है. After that, if I keep on repeating this production n number of times, you will get s goes to 0 की power n, s1 की power n. Am I clear? After that, your s, now you are having terminals and your terminals are in the power of something, that is your half. Answer is finished. Now your aim is to remove this extra capital S because this is not required in the answer. So you will have to check in your production, that is whether there is any production which will eliminate S into terminals or into some null symbol. So yes, we do have one production in the question which will be eliminating capital S to null. So I am replacing the value of S in this final answer and you are left with 0 की power n, 1 की power n. So this is your answer. ठीक है अनमोल? यस सर. यस सर. चलिए, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी का. बेटा ये जो मैं आपको काम करवाता हूँ ये अपना जोट डाउन करते जाइए, अपनी नोटबुक्स पे ऊपर लिखते जाइए. इट विल बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर जब आपने पेपर देने हैं. अगर किसी ने एमटेक करनी है या फिर यूजीसी नेट के पेपर के अंदर अपीयर होना है तो दिस सब्जेक्ट विल हेल्प्स यू अ लॉट. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, इसके गेट के अंदर. ठीक है? सो सेकंड एग्जांपल. सो इन सेकंड एग्जांपल, let capital G is equals to, first tuple is S comma C, second tuple is A comma B, third tuple is P, and last tuple is S.
So the grammar which is given to you is C goes to ACA slash B. So find L of G. So this is the question. क्वेश्चन समझ आया सबको? सो क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, A, B. Productions P which are denoted by C goes to A capital C small a slash B. So you will be given with two productions. Find out the language generated by grammar. So इसको start करते हैं, कैसे solve करना है. So first of all, you will be starting with the given productions. So C goes to, so now you have two options. Either you can use C goes to ACA, or you can simply put C goes to B, but this will not solve your problem because you will require your answer in the power of something. So if you write C goes to B in the initial step, you will not reach to your answer. So I will always start with that production which is having one variable. So A capital C small a. Small a and small a, these are terminals, and capital C is variables, right? So again I am putting this production, you will get A capital C A. Reason? Because C goes to small a capital C small a. Again you will have to replace this production one more time. You will get three consecutive A's, then C, then A. Again by repeating this to n number of times, you will get A raised to power n, C, A raised to power n. And because the reason is A, C, A n number of times, n times. Am I clear up to this point? सर वो बी वाला बताना, बी कहाँ गया? बेटा बी को भी मैंने यूज नहीं करा है. यहाँ पे मेरे पास स्लैश का मतलब होता है और. इसका मतलब है आपके पास दो प्रोडक्शन है, एक है सी गोज टू ए सी ए और दूसरी प्रोडक्शन है सी गोज टू बी. ये स्लैश का मतलब क्या है, ये कंप्लीट थिंग का बेटा मतलब क्या है, सी गोज टू ए सी ए और सी गोज टू बी. मींस आपके पास दो प्रोडक्शंस हैं. ठीक है, तो अभी मैंने सी गोज टू बी वाली को यूज नहीं करा है, अभी मैंने यूज करना है. समझ आ गया? ओके सर. कोई डाउट है तो पूछो यहां तक. एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट अप टिल नाउ? नो डाउट्स? So in last step now you are left with only, you will have to remove this C, although you will have A की power something, terminals in the power of something. Now you will have one production which will eliminate capital C to B. So your final answer is A की power n small b A की power n. So the answer is L of G is equals to A की power n small b A की power n. Am I clear? यस सर. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. एक्सक्यूज मी सर. सर बी भी वेरिएबल है? हाँ जी सर बी भी वेरिएबल है? बेटा बी इज अ टर्मिनल. हाँ बी टर्मिनल है. ठीक हाँ जी, मैंने जब ग्रामर की डेफिनेशन आपको समझाई थी, टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं. ठीक है. और वेरिएबल्स हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर Capital लिखे जाते हैं. बी इज अ टर्मिनल, तभी तो उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ. हाँ जी. अदरवाइज अगर बी हमारा वेरिएबल होता तो वो फिर वेरिएबल में Eliminate वेरिएबल को होता था. रिप्लेस करना था, तो आंसर मेरा गलत हो जाना था ना. हाँ जी. ठीक है, थैंक यू सर. आगे चलें. So next example is so let
ये लिख लिया आपने बेटा? लिख लिया? रब कर दूं? यस यस सर। पेपर में 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं आपको। So next example is, let capital G is equals to, the first tuple is only S, the second tuple is only A, third tuple is P, and P is given by S goes to SS. S goes to SS, and you will be asked to find out the language generated by the grammar. So this is the example number 3. So find out the language generated by this particular grammar. So here you will not have any terminal. आपके पास कोई भी टर्मिनल नहीं है प्रोडक्शन के अंदर जो इसको पावर बनाएगा या फिर इसको एलिमिनेट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? S goes to SS. तो अगर इस प्रोडक्शन को मैं लिखूंगा S goes to SS, पहली बात तो इसकी रेपिटेशन नहीं होगी, नो रेपिटेशन विल बी देयर, क्योंकि कोई टर्मिनल ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इस प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास ओनली सिंगल प्रोडक्शन इज देयर, ओनली सिंगल प्रोडक्शन। सो इन दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन योर आंसर इज ऑलवेज L of G is equals to 5. ये याद रखना, because you don't have any production in which there is any terminal. ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्शंस के अंदर जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए? L of G is equals to 5. 5 का मतलब होता है नल, कुछ भी नहीं। Am I clear? बेटा क्लियर है? आगे चलें। यस सर। So this is about when the grammar is given and you will be looking for language. Now we will start with second method. Just hold on. In second method, now we will be constructing a grammar. In this case, a language is given to you, right? So first example is find a grammar generating, find a grammar so find a grammar generating L is equals to A की पावर n, B की पावर n, C की पावर I, राइट? सो इस केस के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? G फाइंड आउट करना है। Am I clear? So can I start? Yes, sir. So I'm going to construct G. So G के अंदर बेटा आपको क्या क्या ढूंढना है? वैल्यू ऑफ Vn, वैल्यू ऑफ Vt
वैल्यू ऑफ P एंड S, ठीक है। तो आपको ये चीजें ढूंढनी है, वेयर एज VT इज गिवन। VT क्या होते हैं आपके सेट ऑफ टर्मिनल, सो इन दिस केस you are having 3 terminals A, B, C. So this thing is given in the question. Next, P आपको ढूंढना है, VN आपको ढूंढना है, right? So I'm going to start with S goes to A, small a, capital A, small b. ये मैंने अपनी तरफ से assume करी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको assume करना है, assumption करनी है, so that you will reach to your answer. आपको ये चीज बनानी है, right? So I have assumed that capital S goes to small a, capital B, क्योंकि मेरे को A और B चाहिए था, अभी C को होल्ड पे रखिए, right? If I repeat this production, S goes to A, capital A, B, because S goes to small a, capital A, small b, ठीक है। Now I am repeating this production to n number of times. You will get A की power n, capital A, B की power n, by repeating S goes to small a, capital A, small b to n number of times, n times. Am I clear till this point? So by using this production, ये आपकी पहली प्रोडक्शन है ग्रामर की जो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, प्रोडक्शन की पहली ग्रामर है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद सेकंड प्रोडक्शन मैंने क्या सपोज करी अपनी तरफ से सपोज करा है मैंने कैपिटल ए, इसके ना गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, सॉल्यूशन 2 है। बेटा इसकी ये वाला मेथड ना थोड़ा गलत हो गया है, आपको दूसरा मेथड करवाता हूँ, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान मेथड करवाता हूँ मैं आपको। वो आसान मेथड क्या है, सबसे पहले आपने एज्यूम करा है S goes to SC, कैपिटल S, स्मॉल c. So this production is the first production. So now मैं यहां से बनाना शुरू कर रहा हूं, पहले मैंने C को बनाना शुरू करा। So S goes to, अगर इसको मैं एक दफा और पुट करूंगा तो मेरे पास 2 बार C आ गया, बिकॉज S goes to SC। अगर इसको मैंने I टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि मेरे को C की पावर I चाहिए, S goes to C की पावर I, यहां पे लिख देंगे आप S goes to SC I टाइम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? Am I clear about till this point? ठीक है। तो अभी मैंने पहले A और B को होल्ड पे रखा, C ऑफ I से बनाना शुरू कर दिया और C ऑफ I मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने सेकंड प्रोडक्शन एज्यूम करी है S goes to A, ये मैंने अपनी तरफ से सेकंड प्रोडक्शन एज्यूम कर ली, तो क्या हो गया मेरे पास S goes to A, तो क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर पुट कीजिए S goes to कैपिटल A C ऑफ I, ये प्रोडक्शन आ गई है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट अप टिल दिस पॉइंट? आगे चलें। इसके बाद यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, तीसरी प्रोडक्शन एज्यूम कर रहा हूं, A goes to स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b। तो ये आपने तीसरी प्रोडक्शन एज्यूम करी है, क्योंकि अब मेरे को इसकी साइड पे A और B चाहिए थे, तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया A, कैपिटल A, स्मॉल b। तो इसको पुट कर रहा हूं इसके अंदर, सो यू विल गेट स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b, C की पावर I, राइट। अब अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं एक दफा और, S goes to A, कैपिटल A, B, C की पावर I। अब इस प्रोडक्शन को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A की पावर n, कैपिटल A, B की पावर n, C ऑफ I। यहां पे आपको रीजन देना है बाय यूजिंग A goes to small a, capital A, small b n times।
यहां तो कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो पहली प्रोडक्शन हमने एज्यूम करी थी एस ऑफ सी, दूसरी प्रोडक्शन थी हमारी एस ऑफ ए, तीसरी प्रोडक्शन थी हमारी ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज है, दिस ए। अब इसको कैसे खत्म कर सकते हो, इफ यू अज्यूम वन मोर प्रोडक्शन ए गोज टू नल। ठीक है, सो इट विल बी एलिमिनेटेड एंड योर आंसर विल बी ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर आई, जो कि आपको चाहिए था। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके टपल्स कौन कौन से आ गए, कैपिटल एस कैपिटल ए, वीक डी के अंदर आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। प्रोडक्शंस आपके पास है 4, 1 2 3 और 4, तो लास्ट टपल है आपका एस, तो हमने ऐसे यूज किया। हाँ जी, क्लियर है? एम आई क्लियर? यस और नो के दोबारा समझाऊं? बेटा बोलिए कुछ। रिपीट कर दो सर। सर ये जो आपने सेकंड प्रोडक्शन अज्यूम की है, इसमें s इज इक्वल्स टू ए सी पावर आई, ये कैसे लिखा आपने? बेटा अज्यूम नहीं करा है मैंने, लिखा कैसे है शुरू से समझिए। सबसे पहले जो प्रोडक्शन अज्यूम करी है वो प्रोडक्शन क्या थी, कैपिटल एस गोज टू एस सी, क्योंकि मेरे को सी चाहिए था और एक वेरिएबल चाहिए था जिसको मैंने रिपीट करना था। ठीक है, टर्मिनल्स रिपीट होते हैं, वेरिएबल रिपीट नहीं होते हैं, मेरे को टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ टर्मिनल्स, तो इसको एक दफा और लिखा, तो एस रिपीट नहीं हुआ लेकिन सी रिपीट हो गया, तो यू विल गेट एस, S goes to SCC। अगर इस प्रोडक्शन को I टाइम्स रिपीट करोगे, क्योंकि आंसर के अंदर मेरे को C की पावर I है, तो इसको I टाइम्स रिपीट करवाऊंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, S goes to S of CI। ठीक है, अब एक और प्रोडक्शन एज्यूम करी जिसको मैंने नंबर दिया 2, वो प्रोडक्शन क्या कहती थी, S goes to कैपिटल A। सो ए वाली प्रोडक्शन को यहाँ पे पुट करा अपनी इनिशियल प्रोडक्शन के अंदर, ओरिजिनल प्रोडक्शन के अंदर, जो कि क्या आई थी, S goes to S of CI। तो अब S की जगह पे मैंने पुट कर दिया है A, तो यू विल गेट S goes to A of CI। यहां तक क्लियर है तनवीर? यस सर। तनवीर ही थी ना जिसने पूछा था? हाँ जी सर, यहां ठीक तक है। क्लियर है तनवीर? हाँ जी सर। उसके बाद मैंने अब ए के साइडों पे मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए मैंने एक और प्रोडक्शन यूज करी which says that capital A goes to small a capital A small b। तो ये आपकी तीसरी assumption है। You can suppose as much amount of productions by your own। ठीक है, आपको आंसर बनाना चाहिए जितनी मर्जी प्रोडक्शन यूज करो, लेकिन वो प्रोडक्शन ठीक होनी चाहिए। तो जब ये वाली प्रोडक्शन यहाँ पे पुट करी तो क्या बन गया आपके पास, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, एंड ये वाला सी आई एस एच आ गया। ठीक है, अब आपका ये आंसर मेरे को कुछ बनता दिख रहा है, मेरे को ए चाहिए था आ चुका है, स्मॉल ए चाहिए था आ चुका है, बी चाहिए था आ चुका है, और सी आई हम बना चुके हैं। नाउ यू विल हैव टू रिपीट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हाउ यू गोना रिपीट इट, simply by repeating this production one more time। So I have put this production one more time, you will get double A, capital A, double B and CI। If I am keep on repeating this production n number of times, you will get A की power n, capital A, B की power n, C of I। A की power n, capital A, B की power n, C of I। Right? So what thing is additional? Now this capital A is additional. So by supposing one more production which says that A goes to null, so it will solve your answer। So your answer is A की power n, B की power n, C की power I, which is required to you, and this thing you will have to produce, that is your grammar। So your final answer is G is equals to, first tuple is S comma A,
Second tuple is small a, small b, small c. Third tuple is S goes to SC, comma, A goes to small a, comma, A goes to small a, capital A, small b, comma, A goes to null. And last tuple is S. So this is your required answer. ये आपका आंसर है. क्लियर है? Am I clear? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, सुमित कुमार झा, पूनम, सिमरन, रितेश, साक्षी. No, sir. नो सर क्लियर. No, sir. So with this example, your chapter number 4 is finished. So next, chapter number 5. So chapter number 5. The name of the chapter is अब आपको स्क्रीन बेटा विजिबल है? Yes, sir. Yes, चलिए. sir. So the name of the chapter is chapter number 5, regular sets and regular grammar. Regular sets and regular grammar. So let's start with first definition, which says that regular expressions. So regular expressions क्या होते हैं? These are useful for representing certain sets of strings in an algebraic fashion. ठीक है? So strings आपने पढ़ी हुई हैं. A आपकी string है, B आपकी string है. A B को अगर मैं इकट्ठा लिखूंगा तो वो आपकी string है. आपकी जो strings हैं A B B एक string है, ठीक है? 0 1 1 एक string है. Now the definition says that these are useful for representing certain sets of strings in an algebraic fashion. So अगर A आपकी एक string है, B आपकी एक string है, A डबल B एक string है, 0 1 1 या फिर 1 0 1, ये सभी आपकी strings की एग्जांपल है. ठीक है? तो डेफिनेशन आपको कहती है कि these are useful for representing certain sets of strings in an algebraic fashion. अलजेब्रा पढ़ा हुआ है आपने मैथमेटिक्स के अंदर. अलजेब्रा के अंदर हम लोग यूज करते हैं साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन. ठीक है? सो इफ यू राइट a प्लस b, तो ये आपका क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन. इफ यू राइट a माइनस b, तो ये आपका क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन. इफ यू राइट a b डॉट b a, तो ये आपका क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन. Am I clear? So they describe exactly the regular languages. समझ आया रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज है बेटा? रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आया? yes or no? Repeat कर दो. So definition says that these are useful for representing certain sets of strings in an algebraic fashion. सबसे पहले तो strings क्या होती हैं? A is a string, B is a string, A double B is a string, 0 1 1 is a string, 1 0 1 is a string. That is, you can write any string. 5 consecutive ones, ये string की example है. So when you write A plus B, तो ये एक regular expression बन जाएगा. When you write A minus B, तो ये एक regular expression बन जाएगा. When you write A B dot B A, तो ये आपका एक regular expression बन जाएगा. Right? So next, properties.
properties of regular expression. So the first property says that any terminal symbol, that is any element of sigma. Sigma क्या होता है आपका? Terminal. Small a, small b, small c, so on up to small z. So कोई भी टर्मिनल सिंबल है जो कि सिग्मा का पार्ट होगा या फिर नल या फिर फाई, वो आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, राइट? Second property, the union of two regular expressions R1 and R2. ठीक है, अगर आपके पास R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, तो उनका यूनियन क्या होगा? R1 प्लस R2, ये उनका यूनियन होगा, एंड दिस थिंग इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन. समझ आया? If you are having two regular expressions written with R1 and R2 separately, then if you write it as union R1 plus R2, तो ये भी एक regular expression ही कहलाया जाएगा. Third property says that concatenation of two regular expressions written as R1 R2 is also a regular expression. तो ये था union. If you will take concatenation R1 R2, यहाँ पे डॉट भी यूज कर सकते हो आप. कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? एंड. यूनियन का मतलब क्या होता है? प्लस. So third property says that the concatenation of two regular expressions R1 and R2. So in this case, R1 and R2 are individual regular expressions. So the concatenation is R1 dot R2, or simply you can write R1 R2 collaboratively, right? So this collaboratively known as a regular expression. Fourth property, the iteration. Iteration is also called closure. So the iteration or closure of a regular expression capital R is written as R star. R star का मतलब क्या होता है? Iteration or closure means if you want to repeat any element, you will have to put a star over to that element. So here R is a regular expression. So the closure or iteration of a regular expression is written as R star. Last but not the least, property number 5. If capital R is a regular expression, then R within parentheses is also called regular expression. Am I clear? So if your simple R is a regular expression, your R under parentheses, left parentheses and right parentheses
it will also act as regular expression. So am I clear about these properties? Yes, sir. So next definition is regular sets. Next definition is regular sets. So the definition of regular set says that any set represented by regular expression. Regular set definition says that any set represented by regular expression is called regular set. For example, अगर इसकी एग्जांपल हम समझें तो मैं एक तरफ आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, एग्जांपल एक तरफ मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते जा रहा हूं और दूसरी तरफ उसके सेट बनाएंगे, रेगुलर सेट. सो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, a plus b, it is a regular expression. So how you can write this? सबसे पहले सिंपल एग्जांपल देखो, सिंपल a, ये आपके पास a एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका सेट कैसे बनेगा, a विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये आपका एक सेट बन जाएगा. ठीक है. सेकंड एग्जांपल a plus b, so how you can write it as a comma b, तो ये इसका सेट है. if you have any regular expressions given with a plus b, so it is written with a comma b. Am I clear? Next is a dot b, concatenation a dot b. अगर ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो you are having ab as a regular set. Last example number 4, if you are having a star as a regular expression, so its corresponding set is null comma a comma double a comma triple a comma so on up to infinity. ठीक है. Am I clear about these examples? Yes, sir. Am I clear? Yes, फिर से sir. समझा रहा हूं, अगर आपके पास Yes, sir. a एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब लिखोगे तो वो आपका एक रेगुलर सेट कहलाया जाएगा. सिमिलरली a प्लस b अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको आप लिखोगे a कोमा b अंडर कर्ली ब्रेसेट्स. सिमिलरली जब आपके पास a डॉट b होगा तो इट विल बी रिटन एज ab इकट्ठा और कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी. एंड इफ यू हैव a का स्टार मींस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजर, आइट्रेशन और अ कॉन्सेप्ट ऑफ लूप. अगर आप लूप के अंदर कोई कंडीशन नहीं दोगे तो इट विल रन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स. सो सिमिलरली a का स्टार जो है उसको लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर सेट्स null comma a comma double a comma triple a and so on. Am I clear? Yes, sir. चलिए बेटा. So now time for poll 1 and poll 2. So आप लोग ये पोल्स अटेम्प्ट कीजिए, मैं 10 मिनट के बाद आपका लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करूंगा. ठीक है. पोल्स के बाद फिर अगला टॉपिक करते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर, ये जो आपके पास ए से लेकर जी तक गिवन जो है, अब आपके पास बेटा रेगुलर रीमा बेटा माइक अपना म्यूट पे कीजिए. समझ आ गया? अब आपके पास क्या गिवन है, रेगुलर सेट. मींस आपके पास ये चीज गिवन है और आपने ये फाइंड आउट करना है. यू विल हैव टू फाइंड आउट रेगुलर एक्सप्रेशंस. समझ आ गया सबको? बेटा समझ आ गया क्या करना है? No, sir.
जो ब्लैक बोर्ड पे समझाया वो समझ आया? रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर सेट कैसे बनते हैं? हाँ जी सुमित के जा, Yes, sir. ये समझ आ गया था ना? अब आपके पास ये चीज Yes, गिवन sir. है, ये गिवन है, आपको ये बनाना है, तो क्या दिक्कत है? Okay, sir. जैसे कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर ए का स्टार है और इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ए का स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन था, उसका सेट ये था। अब आपके पास ये गिवन है, उसका उससे ये बनाना है, तो क्या डिफिकल्टी है बेटा इसमें? हो जाएगा? Yes, sir. चलिए ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं आपका सोल्यूशन देता हूं। मैं 10 मिनट के बाद लेक्चर कंटिन्यू करूंगा दोबारा, ठीक है? स्टूडेंट्स कर लिया सोल्व सबने? यस सर। चलिए मैं एक एक करके ना इनका सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं, तो चेक कर लेना अपना अपना, ठीक है? रिलैक्स एक। So part A is, in part A is regular set, we have 1 0 1. So its corresponding regular expression is 1.0.1. So its regular expression is 101, or you can also write it as without bracket 101. Am I clear? यस सर। Next, part B. Part B is A B B A. So its regular expression is A dot B dot B dot A. Part C, 0 1, comma 1 0. 0 1 प्लस 1। Its corresponding regular expression is 0 1 plus 1 0. ये कितने बच्चों का ठीक है? सारे हैं तो ठीक है सर मेरा और चेक है अभी तक तो। सर। सर हाँ जी, सर आज सबका बड़ा वा ए सर ए बी डॉट बी ए नहीं आ सकता? ए बी सारे हम जे डॉट लगाने बेटा, फिर सब में लगाने, अगर नहीं लगाना तो कोई भी ना लगाओ। ठीक है सर। इसका आप ये भी लिख सकते हो ए बी बी ए। अगर डॉट लगाना है तो सब में लगाओ, अगर नहीं लगाना तो किसी में मत लगाओ। ठीक है सर। नेक्स्ट, नल कोमा ए बी, पार्ट डी। नल प्लस ए बी। नल कोमा ए Null plus A dot B. नल प्लस ए बी और सिंपली ए बी, क्योंकि नल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसको आप ए बी भी लिख सकते हो अकेला, ठीक है? नेक्स्ट, ए बी बी कोमा पार्ट ई, ए बी बी कोमा ए कोमा बी कोमा बी बी ए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है ए डबल बी प्लस ए प्लस बी प्लस बी बी ए। एम आई क्लियर? Yes, sir. ये सबके ठीक है? आई होप ये आसान थे तो Yes, सबका sir. ठीक होगा। मेरा Yes, sir. यस सर। किसका गलत है? मेरा सही है। शिवम, शिवम गलत है आपका। नेक्स्ट, नल कोमा, इसका आंसर क्या है बेटा? पार्ट एफ का। सर पार्ट एफ का आंसर क्या है? 0 स्टार। नल कोमा 0, 2 times 0, 3 times 0 and so on. So its corresponding regular expression is 0 star. हाँ जी। Its corresponding regular expression is 0 star. Last but not the least, part G.
1, 111, 111 एंड सो ऑन। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 स्टार होना सर इधर, ये बताएगा कोई? स्टार होना सर इधर, हाँ जी, 1 स्टार। 1 प्लस 1 star. 1 + 1 स्टार गलत है। और कोई? सिंपल 1 स्टार 1 नो, star. गलत है हो गया सर। बेटा। नल देगा नहीं, तुसी 1 स्टार कितना लिख लिया? तो 1 to the power is 1 के पावर पे प्लस। नहीं बेटा, देखिए ध्यान से Sir, देखना। 1 to 1 raised to power यहाँ 1. पे अगर मैं 1 को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? ये याद रखना कि अगर TOC से अगर कोई चीज कॉमन निकालोगे तो अंदर अगर कुछ नहीं है तो वो टर्म 1 नहीं होगी, नल बचेगी, ये याद रखना। सो आई एम टेकिंग 1 एज अ कॉमन टर्म। अंदर क्या बचा? Null. अच्छा 1 dot 1 star. अंदर बचा मेरे पास नल, 1 1, 2 1, 3 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपका आंसर जो है 1 1 का स्टार, ये आपका आंसर है। समझ आया? हो सर। 1 को कॉमन लिखा तो अंदर बचा नल, देन फॉलोड बाय सिंगल 1, हाँ जी 2 1, ट्रिपल 1 एंड सो ऑन, एंड इट विल बी रिटन एज 1 स्टार। सो 1 1 का स्टार इज योर आंसर। और यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो, 1 डॉट 1 का स्टार। Am I clear? तो ये तो वही कहा था 1 dot 1 Yes star. sir. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर पोल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिटीज। सो ये आइडेंटिटीज बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आपको सारी रखनी है, लेकिन जो हमारी ज्यादा यूज में आती है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको नंबर बता देता हूँ उसका। ठीक है, सो फर्स्ट आइडेंटिटी सेज दैट phi plus r is equals to r. So whenever you will be given with phi plus r, it will be replaced with r only. I2 phi r is equals to r phi. So second identity क्या कहती है? phi r जो है that is equivalent to r phi or it is equivalent to phi only. तो इसको आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट I3 नल R इज इक्वल्स टू R नल इज इक्वल्स टू R। तो जो आपका नल R है वो R नल के बराबर है, या फिर उसको आप R के बराबर भी लिख सकते हो। सिमिलरली I3 के अंदर एक चीज और ऐड कर दो, ऐड करके एंड नल R का स्टार इज इक्वल्स टू R स्टार। ये चीज बुक में मिसिंग है, ये याद रखना कि whenever you are given with null R star, this thing is equals to R star। ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। I3 नेक्स्ट I4 null star is equals to null and phi star is equals to null, ये भी याद रखना। ठीक है, then when you have R plus R is equals to R, अगर आपके पास दो R हैं और उन दोनों में यूनियन है तो वो R के बराबर होगा। हेलो हाँ जी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब बट रजत नेटवर्क इशू के कारण बाहर हो गया है ग्रुप से, तो उसको ऐड कर लीजिए। बेटा, मैंने सबको अलाउ करा हुआ है, एनीवन कैन ज्वाइन बाय देयर ओन। मैंने मीटिंग वाला रूम डिसेबल करा हुआ है, तो उसको हाँ तो सर क्लिक पे लिंक करे और ज्वाइन हो जाए। ओके ओके, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट R star is equals to R star. So whenever you are having R star, so this thing is equivalent to R star. ये हमने अभी ना रिजल्ट्स यूज करने हैं, इसलिए ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट I7 R star is equals to R star R, right? Similarly I8 is R star under parenthesis is equals to R star. Next I9, again very important. I9 says that null plus R ka star is equals to R star, which is further equals to null plus R star R. तो ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों इसके बराबर हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, इसको याद रखना।
null plus r star which is equivalent to r star, or null plus r star r is equals to r star. Next, I10, identity number 10. ये सारी बेटा बुक में गिवन है आपके पास, जो मैंने KLP मिश्रा भेजी है ना, उसके अंदर सारी आइडेंटिटीज गिवन है. नेक्स्ट, I10, PQ within parenthesis का स्टार P is equals to P बाहर QP अंदर. तो ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, तो इसकी वैल्यू आप ये भी यूज कर सकते हो या रिवर्स के अंदर भी यूज कर सकते हो. I11 P plus Q का होल स्टार which is further equals to P star, Q का स्टार का होल स्टार which is further equals to P का स्टार plus Q का स्टार का होल स्टार. Again this identity is also important. I3, I9, I11, I12, तो इनको तो रट्टा लगा लेना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं जो चार हैं. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर हैविंग P plus Q अंडर पैरेंथेसिस बाहर R, इट इज इक्विवेलेंट टू PR plus QR. ठीक है. P plus Q अंडर पैरेंथेसिस बाहर है R इज इक्वल्स टू PR plus QR. सिमिलरली अगर R बाहर होगा तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, which says that RP plus RQ. Am I clear? सर आ रिपीट करियो चार ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ. I3, I9, I11 ਤੇ I12. ਸਰ I3, I9, I11 ਤੇ I12. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So first question is basically अगर आप लोगों ने दो रेगुलर आइडेंटिटीज का यूज किया है, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए, whenever you are given with two regular expressions RE1 and RE2 and आपने दोनों की इक्विवेलेंसी चेक करनी है, तो यू विल गो फॉर आइडेंटिटीज. ठीक है. इसको दो मेथड से कर सकते हैं. मेथड नंबर 1 होता है आपका विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, जो हम अभी कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज, जो I1 से लेकर I12 यूज करके करेंगे. मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 के अंदर क्या होता है, बाय कंस्ट्रक्टिंग FA, बाय कंस्ट्रक्टिंग FA. FA क्या है आपका, फाइनाइट ऑटोमेटा. सो whenever you are given with two regular expressions RE1 and RE2 and you will have to make them equivalent, then you can adopt either of these methods. ठीक है. You can prove them by using identities and by constructing FA. ठीक है. अब आपका फर्स्ट मेथड कब यूज, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फर्स्ट मेथड से करना है या सेकंड मेथड से करना है? तो जब भी एग्जांपल के अंदर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, तो ऑलवेज गो फॉर आइडेंटिटीज मेथड. ठीक है. व्हेनेवर योर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, ऑलवेज अडॉप्ट मेथड नंबर 1. अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वो ऑलमोस्ट बराबर है राइट हैंड साइड के, तो always adopt method number 2 by constructing FA. So let's start with the topic. It says that equivalence of two regular expressions by using identities. Equivalence of two regular expressions by using identities. So question क्या है? Prove that. Question is prove that 1 plus 0 0 का स्टार 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस
1 प्लस 0 0 का स्टार 1 ब्रैकेट क्लोज 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार So this thing is given to you and you will have to prove this with the help of identities. Am I clear? So इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है देखिए ध्यान से. So first of all I'm going to start with left hand side. ठीक है. So left hand side के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है आपके पास 1 प्लस 0 0 का स्टार 1 प्लस 1 प्लस 0 0 का स्टार 1 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का फुल स्टार 0 प्लस 1 0 का स्टार 1. ठीक है जी. अब सबसे पहले देखिए कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आती है. क्या करना है आपको सबसे पहले क्या चेक करना है चेक दैट वेदर देयर इज एनी कॉमन एक्सप्रेशन इज देयर. यस वी डू हैव. ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास कॉमन है. तो मैंने क्या करा 1 प्लस 0 0 का स्टार 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा नल. तो मैंने आपको अभी बताया है कि वेन एवर यू आर टेकिंग सम टर्म कॉमन इन केस ऑफ टीओसी अंदर आपके पास 1 नहीं बचेगा, अंदर बचेगा नल. तो नल प्लस बाकी ये दो एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएंगे. ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा आपकी आइडेंटिटी कौन सी थी कॉमन वाली आइडेंटिटी नंबर I12 यही थी ना कि ब्रैकेट के अंदर कोई चीज कॉमन है. I12 के अंदर था कॉमन चीज. इसके अंदर आपका R कॉमन था तो बाद में ब्रैकेट के अंदर उसको रख दिया था. यहाँ पे आपने रीजन देना है बाय यूजिंग I12. नेक्स्ट अब नल प्लस ये आपका R है और ये आपका स्टार है. ठीक है. ये आपका R है और ये सेम चीज का ही स्टार है. तो नल प्लस R स्टार R ये आइडेंटिटी थी आइडेंटिटी नंबर 9. नल प्लस R स्टार R विच इज इक्वल्स टू R स्टार. यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 0 का स्टार 1 अंदर क्या आया हमारे पास R स्टार. तो R स्टार की वैल्यू क्या थी ये यहाँ पे रीजन आ जाएगा बाय यूजिंग I9. Am I clear? Yes or no? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. Any doubt till this point? No doubt? नेक्स्ट. सो नाउ आपने ध्यान में रखना है कि आपको चाहिए क्या और आपका क्या आ चुका है. तो 1 0 ये आपकी टर्म है. ये आपके पास राइट हैंड साइड बन चुकी है. 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार ये चीज आपके पास आ चुकी है राइट हैंड साइड की. नाउ इसको आपने अब कुछ नहीं करना. ठीक है. इसको अब आप कुछ नहीं करोगे. क्या करोगे इसको रिड्यूस करोगे. ठीक है जी. इसको कैसे करेंगे इसके अंदर भी देखिए कोई टर्म कॉमन है. यस 1 इज अ कॉमन टर्म. तो क्या लिखूंगा 1 बाहर आया अंदर बचा नल प्लस 0 0 का स्टार ये और बाकी टर्म एज सच आ गई. यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग I12 अगेन. एम आई क्लियर? यस सर. ठीक है. अब लास्ट के अंदर ये नल प्लस
आर का स्टार, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 0, ये भी आर है, आर का स्टार, तो ये क्या हो गया फिर I9 लगेगी, ठीक है। सो विच सेज दैट अगर हूबहू सेम रखना है, ऐसा ही रखना है, तो 1 को दूसरी तरफ कॉमन ले लो, मीन्स कि 1 इधर कॉमन मत निकालो, 1 को इधर कॉमन निकाल लो। इस ब्रैकेट में से मैंने 1 को कॉमन निकाला तो 1 यहाँ पे लिखा, तो मेरा क्या बन गया आर स्टार। सो दिस इज योर आर स्टार 1, बाकी टर्म एज सच 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार बाय यूजिंग I9। सो दिस इज योर आंसर which is equals to right hand side. So hence proved, left hand side is equals to right hand side, hence proved, ठीक है। सर आंसर ऊपर लिख दो, वो नजर नहीं आ रहा नीचे। कौन सी लास्ट लाइन नहीं दिख रही आपको? नो सर। हमने लास्ट में क्या करा है, 0 का स्टार 1, 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 का होल स्टार बाय यूजिंग I9। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब ठीक है, सो शुरू से बताने लगा हूं। इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या करा है, तो इस एग्जांपल की लेफ्ट हैंड साइड बड़ी थी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ आइडेंटिटीज। सो आफ्टर दैट carefully check the left hand side and look for whether there is any common term. Yes, there is one common expression, that is 1 plus 0 0 का star 1, वो दोनों साइड के ऊपर कॉमन है। तो when you take this complete regular expression as a common term, you will left with null plus other two terms, right? Null plus other these two terms. After that null plus r ka star, so this is your r star and this thing is r. So by using identity I9, इसके नीचे मैंने I9 यूज करा, तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वलेंट टू r स्टार। तो ये चीज आपकी बन चुकी है अगर आप आंसर देखेंगे तो इसको अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको छुएंगे और इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो अगेन बाय टेकिंग 1 को कॉमन निकाला एट साइड के ऊपर, तो अंदर बचा नल प्लस आर का स्टार। अगेन आर का स्टार जो है दैट इज इक्वलेंट टू आर स्टार, नल प्लस आर स्टार विच इज इक्वलेंट टू आर स्टार। सो उसको मैंने लिख दिया 0 का स्टार 1, 0 प्लस 1 स्टार 1 का होल स्टार। सो दिस इज योर आंसर विच इज रिक्वायर्ड। क्लियर है सर? अगर हम बाई जैसे कोई आइडेंटिटी यूज की और उसकी जगह पे हम आइडेंटिटी नंबर ना लिख के सीधा वो नहीं लिख सकते, जैसे सर आर स्टार अगर यहाँ पे आपको I9 नहीं लिखना है, यस सर, simply you can write because null plus r star r is equals to r star। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो सकती है तो आप आइडेंटिटी लिख दीजिए, नंबर मत लिखिए, ओके सर, ठीक है। इट्स अप टू यू, लेकिन दोनों में से एक चीज जरूर लिखनी है। कोशिश ज्यादा ये किया करो कि आइडेंटिटी ही लिखो, नंबर ना यूज करो। समझ आई बात? या दोनों चीजें कर दो, I9 उसके बाद आइडेंटिटी दे दो। चलिए नेक्स्ट, टाइम फॉर पोल नंबर 3। ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर पोल 3 रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका आंसर कीजिए। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी।
थलियों कौन सी ऐसी पिछो ही? हाँ जी स्टूडेंट्स, कर रहे हो? रिधिमा, पोल का क्वेश्चन विजिबल है आपको? जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, जो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैंने अलग से पोल नहीं बनाई हुई है, पोल वाली स्क्रीन नहीं आएगी आपके पास। जो स्क्रीन मैंने शेयर करी हुई है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करा हुआ है बेटा क्वेश्चन, वो देखिए आप लोग। वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ मेरे को। ये पोल 3 का क्वेश्चन है जो स्क्रीन के ऊपर है, अलग से पोल 3 नहीं आएगी आपके पास। हो गया? किसी ने करा है ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट? यस सर। सागर, रजत, हो गया? यस सर। इक्वलेंट हैं दोनों? यस सर। वेरी गुड। हाँ जी सागर, आपका हो गया? तनवीर? यस सर, यस सर, हो गया सागर? यस सर। वेरी गुड। हाँ जी शरीश, हो गया बेटा आपका? शरीश सैनी, रजनी, अमित, शेखर, निखिलेश। मेरे ख्याल से ना जो बच्चे मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करते वो माइक ऑन करके अपना ना चले जाते हैं, लेक्चर सुनते नहीं हैं। विवेक शर्मा, हो आप उधर? विवेक शर्मा, शुभी, वैभव, प्रभनूर। यस सर, हो गया सर। वेरी गुड। यस शुभी, सर। यस सर। हो गया? चलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे करने जा रहा हूं, इसको देख लीजिए कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है इसके अंदर। First of all, your left hand side is null plus 1 का स्टार ब्रैकेट स्टार्ट 0 1 1 का होल स्टार ब्रैकेट क्लोज, देन 1 का स्टार 0 plus 1 1 का होल स्टार। This thing is equivalent to 1 plus 0। नहीं, ये तो राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे अगेन। The left hand side is greater as compared to right hand side, so I will go for identities methods. So first of all, null plus, so this thing is R and this thing is R star. तो पहली कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी हमारी?
I9 R स्टार I9, शाबाश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्टार 0, 1 1 का स्टार का होल स्टार। यहाँ पे आप रीजन दोगे बाय यूजिंग I9। यहाँ तक किसका ठीक है? कितने बच्चों का ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे को आंसर में चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। तो हमारी जो आइडेंटिटी है जो काम में आएगी वो कौन सी है हमारे पास? I11 I11, शाबाश। I11 क्या कहती है? ये आपका P का स्टार और ये आपका Q का स्टार, तो विच इज इक्वल्स टू P प्लस Q का होल स्टार। तो P प्लस Q का होल स्टार, ठीक है जी, P प्लस Q का होल स्टार। तो यही आंसर था आपका। तो सिंपली बाय यूजिंग टू आइडेंटिटीज आपका आंसर आ जाएगा, which is equals to right hand side, so hence proved। left hand side is equals to right hand side, hence proved। clear है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगेन पोल 4th है, लिखिए जरा क्वेश्चंस। पोल नंबर 4th, describe the following sets, describe the following sets by regular expression, describe the following sets by regular expression। तो पहला सेट क्या है? L1 is equals to the set of all strings, set of all strings of zeros and ones ending in 0 0। B, the set of all strings of zeros and ones beginning with the 0 and ending with 1। and part C is L3 is equal to null comma double one comma 4 ones comma 6 ones comma so। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके रेगुलर सेट बनाने हैं, तो फटाफट कीजिए। इसका रेगुलर सेट बनाकर मेरे को बताइए क्या आंसर आता है आपका। डिस्क्राइब, ये आपके पास सेट गिवन है, सॉरी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, आर ई बनाना है इसका। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा आपके सामने, पहले आप लोग कीजिए ट्राई। So first question is L1 is equals to the set of all strings of zeros and ones ending in 0 0। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताइए मेरे को। बेटा व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है सबको? हेलो, विजिबल है सर। विजिबल है ना बोर्ड?
Yes. ये क्वेश्चन जो लिखा है समझ आया क्या करना है इसके अंदर? सो फर्स्ट का आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, देखना कितने बच्चों का ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस, हमें नहीं पता है कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं और कितने नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसको हम लिखेंगे 0 + 1 का स्टार। समझ आया? The set of all strings of zeros and ones, you don't know how many zeros and ones are there, so it can be written as 0 + 1 का star. Star means any number of times ending in 0 0 dot 0 0, तो जो कि 0 के साथ खत्म हो रहा है। So this is your answer for first question. ये समझ आया? सर 0.1 के स्टार नहीं हो सकता था? हाँ जी, प्लस की जगह डॉट। वो भी ठीक है। इसका आंसर बेटा ये भी हो सकता है 0.1 का स्टार 0 0, दोनों ठीक है, जो बच्चे लिखो। नेक्स्ट L2, the set of all strings of zeros and ones beginning with 0 and ending with 1. तो इसका आंसर क्या है? 0 + 1 का स्टार शुरू हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है 1 पे, तो ये आंसर है इसका। दैट्स इट। ये 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं पेपर में। लास्ट L3, इसका आंसर कौन बताएगा? L3 सर 1 1 का होल स्टार। शाबाश, वेरी गुड। 1 1 का होल स्टार, ये आपका आंसर है। गुड, समझ आ गया आपको? क्योंकि नल है, नल के बाद जो इमीडिएट बाद जो पड़ा हुआ है ना, वो आपका स्टार की फॉर्म में लिख दो। दैट्स इट। तो नल के बाद पड़े हुए 2 वंस, तो दोनों वंस का मैंने स्टार डाल दिया, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ। अब हम इसका सेकंड मेथड शुरू करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस बाय कंस्ट्रक्टिंग FA। अब 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस को प्रूव करेंगे वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट बाय कंस्ट्रक्टिंग FA। ठीक है, इस टॉपिक का हेडिंग क्या है जो आपको बुक में मिलेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपको ना रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल सेज दैट whenever you have P plus Q, P प्लस का मतलब क्या होता है? और। तो उसको आप FA कैसे बना सकते हो? एक स्टेट बनाई, उसका एज बनाया जो कि फाइनल की तरफ जा रहा है, और दूसरा एज बनाया, ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। मींस के 2 रास्ते। लेट्स सपोज, ये आपको कैसे समझाऊं मैं, आपकी MB 301 की एग्जांपल लेते हैं। अब आप सबको पता है वी हैव 3 रोज इन आवर रूम्स। ठीक है, तो मैं सेंटर पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं आपको। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड पे भी रास्ता है और राइट पे भी रास्ता है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? और। मींस यू हैव 2 वेज फॉर डूइंग वन थिंग। मैं अगर सेंटर में जाना चाहता हूं आपके 301 के पॉइंट के ऊपर, तो मैं लेफ्ट सेंटर वाली रो की लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता हूं और राइट हैंड साइड से भी जा सकता हूं। मींस आई हैव 2 वेज फॉर गोइंग टू सेंटर पोजीशन। ठीक है, फॉर P.Q, P.Q उसका मतलब होता है एंड। अब आपके पास एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता बंद है, तो इसको मैं लिखूंगा P फर्स्ट वे एंड योर फाइनल स्टेट। P.Q कैन बी रिटन एज दिस डायग्राम। ठीक है, अगर डॉट R आ गया तो एक स्टेट और ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे P + Q + R आ गया तो एक एज और ऐड हो जाएगा। ये याद रखना, जितने एज बढ़ते जाएंगे, आई मीन जितने एक्सप्रेशंस बढ़ते जाएंगे उतने एजेस आते जाएंगे। तो P + Q का मतलब है एक रास्ता, दूसरा रास्ता। P + Q + R का मतलब है एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। ठीक है, ये समझ आ गया? लास्ट है हमारे पास आइटरेशन। P का स्टार को डायग्राम से कैसे लिखते हैं? इट कैन बी रिटन एज इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट के ऊपर लगाएंगे लूप और उसको लिखेंगे P के साथ। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी और होगा P अगर आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन है। इन तीनों रूल्स में कोई डाउट है तो पूछिए।
बिकॉज अगर ये रूल समझ आएंगे तो आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाओगे। एम आई क्लियर? सर सेकंड सेकंड रूल क्या कहता है? P डॉट Q means you don't have second option, you have only single option is there। ठीक है, तो जितनी आपकी स्टेट्स आएंगी उसके इन बिटवीन ही इंक्लूड होती चली जाएंगी। उसके लिए आप ऊपर या नीचे एज नहीं बनाओगे, सीधा रास्ता है। ठीक है, अगर 4 स्टेट्स हैं तो P डॉट Q डॉट R डॉट S है जैसे कि, तो उतने ज्यादा एजेस बन जाएंगे इसके आगे, और आपकी P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R आगे, S आगे, और लास्ट वाली स्टेट आपकी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है तनवीर? यस सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये रब करने जा रहा हूं, अभी भी कोई डाउट है इन रूल्स में तो समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये रूल्स क्लियर होंगे तभी आप डायग्राम बना पाओगे, अदरवाइज आप डायग्राम नहीं बना पाओगे। So question number 1. Convert the following regular expression to finite automata. Convert the following. अभी जो इक्विवेलेंस वाला है उसको होल्ड पे रखिए, इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट वाले को होल्ड पे रखिए। पहले ये वाला टॉपिक होगा, उसके बाद वो टॉपिक करवाऊंगा आपको। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था ना, इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटास बाय कंस्ट्रक्टिंग एफए। तो पहले आपको समझ होनी चाहिए कि एफए कैसे बनता है, तो मैं पहले आपको एफए बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद वो वाला टॉपिक करेंगे हम लोग। ठीक है, सो इस टॉपिक का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 10 मार्क्स। कन्वर्ट द following regular expression to finite automata. Convert the following regular expression to finite automata. So the question is 0 plus 1 का होल स्टार, 0 plus 1 का होल स्टार, 0 0 plus 1 1, 0 plus 1 का होल स्टार। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जो हमने करना है। ठीक है, convert the following regular expression to finite automata and this complete regular expression represents the statement. So सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1। So represent the, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? represent the entire regular expression with two states। कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपका, उसको दो स्टेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दो। एक मैंने बना ली इनिशियल स्टेट और दूसरी मैंने बना ली फाइनल स्टेट, और पूरे का पूरा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। 0 plus 1 का स्टार, 0 0 plus 1 1, 0 plus 1 का होल स्टार। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? स्टेप 1 कैसे आया? यस और नो? स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर चेक कीजिए रूल कौन सा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका है R1। अगर इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये आपका बन गया R1, ये आपका आ गया R2 और ये आ गया R3। तो सबसे पहले बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपका कौन सा रूल लगेगा वो देखना बहुत जरूरी है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर रूल नंबर 2, डॉट वाला जो रूल है, क्योंकि प्लस वाला या स्टार वाला रूल नहीं लगा सकता। तो R1 डॉट R2 डॉट R3, तो यूजिंग रूल नंबर 2, वो क्या कहता था? आपके पास सिर्फ एक ही वे है, 0 plus 1 का स्टार स्टेट, 0 0 plus 1 1, again a state is there and your final state 0 plus 1 का स्टार। ये समझ आया? हाँ जी, समझ आ गया? यस सर। आगे चलें। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, जस्ट
मैंने रूल नंबर 2 लगाया है, ठीक है। उसके बाद सर, स्टेप नंबर 3। अब सर स्टेप फाइनल नंबर स्टेट 3, इसके बाद आएगी? हाँ जी, फाइनल स्टेट इसके बाद आएगी? फाइनल स्टेट लास्ट वाली होती है बेटा हमेशा। ये तीनों के बाद? हाँ, तीनों स्टेट्स के बाद फाइनल स्टेट होती है, लास्ट वाली स्टेट इज फाइनल स्टेट। अब इसके बाद मैं इसको बीच वाले को ब्रेकेज देने जा रहा हूं, इसको भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन मैं पहले सेंटर वाले को तोड़ने जा रहा हूं। सो स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या लगेगा, प्लस वाला रूल, वो है आपका रूल नंबर 1 यूजिंग R1। तो R1 क्या कहता था, यू हैव 2 वेज, ये एज सच लिखा जाएगा। तो 2 रास्ते बनाने के लिए मैं क्या करा, 0 0 ऊपर चला गया और 1 1 नीचे आ गया, 0 0 प्लस 1 1। ये समझ आ गया? सर ये रूल क्यों लगा? हाँ जी फर्स्ट रूल सर, ये रूल क्यों लगा प्लस वाला? बेटा 0 0 प्लस है ना, तो प्लस के लिए रूल कौन सा था, P प्लस Q, वो रूल है आपका 1, तो वो लगाया है, 2 रास्ते बना दिए। ये 0 0 आपका P है, ये आपका Q है, तो P ऊपर चला गया, R नीचे आ गया। समझ आ गया जोबन? सर आगे आया चलें? है। जी सर। अब आगे हम देख रहे हैं कि अगेन यहाँ पे क्या है हमारे पास, P डॉट Q। P डॉट Q, तो सेम रूल आपका एक सिंगल स्टेप के अंदर लग सकता है। ये है 0 0 1 1, P डॉट Q यहाँ पे लगेगा और P डॉट Q यहाँ पे लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 4 यूजिंग R2। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। ये मैंने क्या करा है, 0 0 के इन बिटवीन एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवा ली है, सो दैट टू रिमूव दिस सिंगल एज, ठीक है। तो 0 0 0 0 क्या है, 0 डॉट 0 के लिए रूल कौन सा लगेगा, P डॉट Q। एम आई क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। अब ये कंप्लीट हो चुका है, क्या बचा है, स्टार को रिमूव करना है। तो सबसे पहले स्टार को कैसे रिमूव करेंगे, ये वाला और ये वाला सेम रूल लगेगा, यूजिंग रूल 3, आइट्रेशन वाला रूल। मींस अगले के ऊपर आपको भेजना है। 0 प्लस 1 कैन बी रिटन एज, यहां पे बचेगा नल और यहां पे आ जाएगी लूप 0, 1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी बचा नल, तो नेक्स्ट लग गई लूप 0, 1 के साथ। ये समझ आ गया? जब भी आपने लूप तोड़नी है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 0 प्लस है, तो 0 प्लस 1 को मैं लिख सकता था 0, 1। इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे लिखा है, ये देख लीजिए। आपके पास है 0 प्लस 1 का स्टार, तो प्लस के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे ना, ये देखिए इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। ये एक रास्ता हो गया 0 के साथ, ये दूसरा रास्ता हो गया 1 के साथ। तो इट कैन बी रिटन एज सिंगल स्टेट के साथ 0, 1, क्योंकि एक के ऊपर 0 से जा रहा है, दूसरे में 1 से जा रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज 0, 1, ठीक है। लेकिन इसके आगे और भी स्टेट्स है, तो इसके लिए ये आपकी फाइनल स्टेट नहीं बनेगी, ठीक है। इसके आगे और कोई स्टेट नहीं थी, ये लास्ट स्टेट थी, तो ये आपकी फाइनल स्टेट है। समझ आ गया? समझ आ गया नहीं? सर ये स्टेप नहीं आया समझ। क्यों? पता नहीं सर। तो ब्लैक बोर्ड पे देख जरा, अगर आपके पास होता 0 प्लस 1 का स्टार, तो 0 प्लस 1 को कैसे लिख सकता है तू, 0, 1 ऐसे लिख सकता है? हाँ जी सर। प्लस को तो आइट्रेशन तोड़ने के लिए उसका रूप लगा दे बस, ठीक है। तो आइट्रेशन कैसे टूटी, ये लूप लग गई 0 के साथ,
इधर से लूप लग गई 1 के साथ। प्लस का मतलब क्या होता है, इसको भी भूल जा। प्लस का मतलब क्या होता है, 2 रास्ते। हाँ जी सर। P प्लस Q का मतलब है 2 रास्ते। तो Yes, एक sir. रास्ता इधर से बनाया, एक रास्ता इधर से बनाया, क्योंकि लूप लगानी है ना, तो लूप लगाई ऐसे। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 0,1, क्योंकि एक ही स्टेट के ऊपर दोनों इनपुट जा रही है, तो कैंसिल करना है 0,1, तो वही तो लिखा मैंने। क्लियर है? 0 जो 1 सर एक बार 0 1 आ गया, उसके आगे एक बार 0 1 कैसे आएगा? बेटा 2 बार आना टर्म। हाँ जी सर। या 2 बार सोल्व करना है तुझे। तो सर फिर फाइनल स्टेट इसकी बनेगी नहीं? क्यों नहीं बनेगी बेटा, फाइनल स्टेट ये वाली है ना, जो लास्ट स्टेट, वो तो आपकी फाइनल गेट कर रही है। हाँ जी वो तो रहेगी ना। ठीक है। अब हमारा स्टेप नंबर 6 जो है वो कहता है रिमूवल ऑफ नल। अब आपको ये एक्स्ट्रा नल रिमूव करने हैं जो आए हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 है रिमूवल ऑफ नल्स। तो वो कैसे करना है आपको, बाय सिंपली रिप्लेसिंग दिस स्टेट को उठाकर यहाँ पे रख दो। सिमिलरली ये वाली स्टेट उठाकर यहाँ पे रख दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई इनपुट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0,1। ये स्टेट जब यहाँ पे आई तो ये स्टेट खत्म हो गई, 0 0, ये आपकी फाइनल स्टेट बन गई 0,1। क्योंकि इसके अंदर हमें ये भी देखना होता है कि मिनिमम स्टेट्स यूज हो। इस एज का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको उठा के स्टेट को मैंने यहाँ पे रख दिया और ये आपकी फाइनल स्टेट पे लाई जाएगी। सिमिलरली ये वाली स्टेट को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7, असाइनिंग स्टेट। असाइन स्टेट नेम टू ईच स्टेट नेम टू ईच सर्कल। जितने भी सर्कल है उनको नाम दे दो। तो स्टेप 7 में आपकी डायग्राम यही रहेगी, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगा, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ये आपका हाफ क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी खत्म हो गया है। यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके आगे इसकी बनेगी डायग्राम, तो डायग्राम से हम इसको कन्वर्ट करेंगे एफए के अंदर, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। Any doubt till this point? सर वो नल No, कैसे लिखा था? no doubt. नल। हेलो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, प्लस इसकी आपको 1-2 एग्जांपल्स और करवाऊंगा, ठीक है। और वो क्या लिखे हैं, साइन स्टेट कहाँ पे बेटा? स्टेप 7 Q0, Q1, Q2, Q3। ये Q7 नहीं है बेटा, नल है। ये जो सिंबल होता है ना उल्टी, स्टेप 7 में, स्टेप 7 कहाँ पे? सर 5 स्टेप में सर नल कैसे लिखा है सर आपने, नल? बेटा जब ये वाली चीज आगे जाती है ना तो वहां पे नल आ जाता है। जब ये वाला एक्सप्रेशन आगे जाएगा ना तो वहां पे नल इंट्रोड्यूस होता है, ये याद रखना। यानी कि सर इन बिटवीन टू स्टेट वी राइट नल। Yes. First of all, we will have to introduce a null symbol. After that, so that you can replace, you can remove that iteration. Okay, To sir. remove the iteration, you will have to introduce a null symbol. But after that, in the next step, you will have to remove that null also. तो पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं so that कि आइट्रेशन खत्म हो जाए, उसके बाद नल को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स की असाइनमेंट है Q0, Q1, Q2, Q3, ये स्टेप 7 में लिखना है। मैंने स्टेप 6 के अंदर ही स्टेट्स लिखी थी, so that मेरे को डायग्राम दोबारा बनाना है, ठीक है। So with this your lecture is over and we will be continuing in next lecture from this topic only, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। So thank you very much for your active listening.